So last time we saw the trigonometric ratios of various angles varying from 0 to 360 degree. अब मुझे बताएंगे what will be sin 3 pi by 2 plus theta equal. ये किसके बराबर आएगा? 3 pi by 2 means 270 degrees, right? So याद करो जैसे pi by 2 होता था 90 तो sin cos बन जाता था, वैसे ही 3 pi by 2 पे sin cos बन जाता है. So what will be the answer in terms of sin cos tan? At 3 pi by 2 270 degrees sin becomes cos, right? तो cos x final answer आएगा. ये 3 pi by 2 इग्नोर कर सकते हैं. अब फाइनल sin क्या लगेगा? Cos theta. So what will be the sin? Now this is in which quadrant? Third. Second. 3 pi by 2 is 270 degrees. Yes. So 270 degrees means still here. So ये 270 plus theta यानी fourth quadrant. Fourth quadrant में sin क्या होता है? Positive, negative. Negative. So negative is there. So हमने signs देखे थे ये. So sign is negative in the fourth quadrant, right? So you will have a final negative sign. So minus cos theta. रिकॉल हो गया सबको? किसी को डाउट इसमें? Okay, what will be this value equal to? This will again be like the same. Minus. Minus cos. So at 270 sin becomes cos, right? So final answer तो cos theta आएगा. Signs देखते हैं कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे. This is quadrant number 3. Quadrant 3 में sign negative होता है, right? So your final answer will contain a negative sign. Cos of pi by 2 plus x. The second one. Plus. It will be cos x. ये 90 का तो सेम नहीं साइन में जाता है minus sin. So this is in quadrant number 2, cos of 90 plus theta, right? So quadrant 2 में cos का आंसर नेगेटिव आता है, so ये हमने यहाँ पे देखा. तो final answer will contain a negative sign. But at 90 degrees cos sin में convert हो जाता है, vice versa. So your answer will be minus sin x. ये क्लियर है आपको विदुषी, इशिका, ईशा? Yes, sir. सुजीत? Yes, sir. Okay, what will be sin of pi minus x? इसमें पाई घट जाता है साइन रहता है साइन और ये सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस. Yes. So at 180 degrees sin remains sin, cos remains cos, right? So final answer will be sin x. Sin देखना है 180 में से अगर x जाएगा तो this will be second quadrant. Second quadrant में sin positive होता है. So final answer will have a positive sign. इसका हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल sin 135 डिग्रीज की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको लिख सकते हैं sin of 180 minus 45, राइट? सो अब ये at 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस, सो sin remains sin and sin 45 180 डिलीट हो जाता है. और ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है. क्वाड्रेंट 2 में sin is positive, राइट? सो योर फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव. सो 1/√2 उसकी वैल्यू होगी, राइट? सो सेम एज sin 45.
Sine of 2 pi plus x. So 2 pi means 360 degrees. So 360 degrees में हम पूरा revolution घूम के आ गए हैं, right? So this is again same as sin. कहीं पे भी 2 pi दिखे तो हम उसको straight away delete कर सकते हैं. अगर ये हो tan of 2 pi plus x. Only tan x. हमें इसमें sin भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है. 360 डिग्रीज है ये, हम पूरा एक सर्कल घूम के आए हैं, राइट? उसके बाद वैल्यू विल रिमेन एज tan. हमें ये भी इवैल्यूएट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कि sin कौन सा है. इस केस में हमें थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ता था कि हमने sin कौन सा लेना है. Sin of 2 pi minus x. Minus sin. Yes, Yasmin, Ishika, Vidushi. Sir, sign of minus x. Yes. So sin of minus x, जो कि फर्दर अभी हम देखेंगे, ये माइनस sin x के बराबर ही हो जाता है, राइट? अगर हम उसको जल्द से देख लें, at 2 pi sin remains sin, तो हमारा फाइनल आंसर sin x आएगा. अभी हम इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्योंकि we are talking here of an angle less than 360. Here we were talking of angles greater than 360, क्योंकि 2 pi plus x था. तो यहाँ पे तो हमें साइंस वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम sin x आंसर लिख सकते हैं. यहाँ पे दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है, सो वी हैव टू अटैच अ नेगेटिव साइन. अगर आप ऐसे भी कर लेंगे स्ट्रेट अवे 2 पाई डिलीट कर देंगे तो ये आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स. अभी हम आगे फॉर्मूला ही देखेंगे, दिस इज सेम एज माइनस साइन एक्स, वी गेट द सेम आंसर्स. सो व्हिचएवर वे यू प्रोसीड. Sine of pi plus x. Yes, Tisha, Ishika, Manan. Minus sin x. Yes. At pi sin remains sin, तो फाइनल आंसर तो sin x ही आएगा, राइट? ये थर्ड क्वाड्रेंट है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन कॉस नेगेटिव होते हैं, राइट? सो यू हैव टू अटैच अ नेगेटिव साइन. मतलब कि अगर साइन पाई प्लस एक्स है या साइन पाई माइनस एक्स है, राइट? तो ये आंसर इन बोथ द केसेस विल बी द साइन एक्स. ये साइन पाई प्लस एक्स था तो साइन एक्स आ गया, ये साइन पाई माइनस एक्स तो भी साइन एक्स आ गया. अब हमें केवल साइंस डिसाइड करना है. वो कैसे डिसाइड होंगे? sin theta is positive in the second quadrant, the answer positive. Here sin theta is negative in the third quadrant, so we have a negative, right? Okay, I'm taking up some questions from exercise 3.2. You are given secant theta is equal to 13 by 5. This is question number 4. And theta lies in fourth quadrant. So you have to find the various other trigonometric ratios. यानी sin theta के value, cos theta के value. So all those you have to find. तो प्रोसेस क्या रहेगा? हमारे पास तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो हमने 10th में सीखी थी. तो secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. यहाँ से हमारा tan theta आ सकता है. इससे cos theta भी आ जाएगा. 5/30 इससे हमारा आराम से sin आ जाएगा स्क्वायर कर सकते हैं. So secant square theta is 1 plus tan square theta. So 13 by 5 square is equal to 1 plus tan square theta. इसको सिंप्लीफाई करेंगे
So once you take square root of both sides, you'll get plus minus 12 by 5. So tan theta की दो values आएंगी once you take the square root of this. But ये fourth quadrant है. Fourth quadrant में tan positive होगा कि negative होगा? So tan will be negative. Negative. Yes, क्योंकि sin theta negative है, cos theta positive है. Right, so tan theta will be negative. तो हमें positive value ignore करनी है, which means tan theta is minus 12 by 5. तो हमारे पास tan theta की वैल्यू आ गई है. cos theta हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. Sin is 12 by 4. So it will be reciprocal of this, which is 5 by 13. So now other trigonometric ratios you have to find. Sin is 12 by 4. So sin theta is 12 by 4. with a positive sign or negative sign? Minus. Yeah. So हमारे पास दो ratios आ गई, tan theta and cos theta. Now we know that tan theta is sin theta by cos theta. तो sin theta वैसे निकाल सकते हैं. So minus 12 by 13. तो secant theta निकाल सकते हैं. वो तो इसका बेसिकली रेसिप्रोकल ही है. So minus 13 by 12. इसके बाद केवल cot theta रह गया. Cot theta is reciprocal of tan theta. So cot theta will be minus 5 by 2. सर Yeah. इसमें हम साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर उसकी आइडेंटिटी की जगह हम सीकेंट में ही नहीं पुट कर सकते कि लाइक 13 उसका हाइपोटेन्यूज हो गया 5 बेस हो गया जो हमें सीकेंट थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में. कर सकते हो, बट इसमें साइंस इन्वॉल्व है. क्वाड्रेंट 1 में करना बड़ा आसान था. ये क्वाड्रेंट 1 में 6 की 6 रेशियोज पॉजिटिव होती थी, राइट. अब ये क्वाड्रेंट 4 है. क्वाड्रेंट 4 मतलब ये कुछ ऐसा सा एंगल है, राइट. तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. हियर द बेस इज पॉजिटिव बट द हाइट इज नेगेटिव. तो जिस जिस रेशियो में हाइट आती है ना, वहां पे आपने नेगेटिव साइन लेना. तो उस तरह Okay, थोड़ा sir. सा कंफ्यूजन होता है. सो बेटर है कि हम इसको इसी तरह से करें. But sir, minus और plus को हम अपना ये जो हमने बनाया हुआ है यस, वो देकर लगा सकते हैं, कर normal सकते हो, कर कर सकते हो. सो वी नो दैट साइन नेगेटिव होता है यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में. साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट भी नेगेटिव होएगा. ये नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है. Values तो cot same भी आएंगी. नेगेटिव होगा. हाँ, वैल्यूज सेम आएंगी. वही हम वैल्यूज फाइंड करके साइन बाद में लगा देंगे ना. कर सकते हो. जो ट्रायंगल वाले मेथड से करके उसके बाद वापस साइंस पुट कर सकते हो. बट अ मोर स्टैंडर्ड वे टू डू इज दिस कि एक हम ट्रिग्नो की आइडेंटिटी लगा लें, राइट. तीनों में से कोई भी एक एंड देन वी फाइंड इट. Okay, now question 8 I am taking up on this. This is tan of 19 pi by 3, right. So there's a very big angle 19 into pi divided by 3. तो हम इसको सिंपलीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है. वैल्यू कुछ ऐसे 1/√2 या √3 1/√3 ऐसे कोई वैल्यू आएगी आंसर. तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, राइट. इसको 19 पाई को मैंने स्प्लिट किया 18 pi plus 1 pi, right. So this is tan of 6 pi plus pi by 3. Now this is a multiple of 2 pi, or in other words this is a multiple of 360 degrees. So at 360 degrees हम directly बस ये इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, right. Tan will remain tan at 360 degrees. और ये हमने देखा था कि 2 pi यानी 360 degrees हम किसी भी एंगल में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस एंगल की वैल्यू से, राइट. तो ये हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे. So your answer will be tan of pi by 3. So pi by 3 अगर कंफ्यूजन हो तो pi की जगह 180 degrees, 180 by 3 so that is 60.
So tan 60 की वैल्यू होती है √3. So √3 will be the answer. प्लस माइनस नहीं, क्योंकि इसमें 2 पाई है तो इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. 2 पाई से काफी बड़े एंगल्स हैं तो इसमें कोई इशू नहीं होगा. और यही 5 So tan of 5 pi by 3. ना ना मतलब अगर 6 पाई प्लस 5/3 आए यहाँ पे 5 पाई 5 pi by 3. तो बस हम tan of 5 pi by 3 निकाल देते हैं. इस 6 pi को इग्नोर कर ही सकते हैं. वो तो मेरे 6 पाई की जगह 5 पाई होगा नहीं, हम क्रिएट ही यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 pi करेंगे. हम क्रिएट ही यहाँ पे 2 pi के मल्टीपल करेंगे तभी हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी, अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा. Okay, let's find cosecant of -1410 degree. अब 360 डिग्रीज का कोई भी मल्टीपल आप इसमें ऐड कर सकते हो. The value doesn't get affected. 720 से और बड़ा. That's fine, we can find. 1440 Yes, माइनस -1410, so 30 डिग्री बचता है, उसकी वैल्यू में पता होती है, राइट. सो 360 डिग्रीज के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 360, 720, राइट. सो 108, 1440. तो हमने ये देखना है कि हम कौन सा मल्टीपल इसमें ऐड करें, राइट. अगर मैं 1080 ऐड कर देता हूँ तो 1080 minus 1410, I will still be left with a very big angle, right. 1440 ऐड करके देखते हैं. So 1440 minus 1410. So this is cosecant of 30. इसकी वैल्यू हमें आसानी से पता होती है, right. So this is reciprocal of sin 30. So which means your final answer will be. तो आपने यही देखना है कि कौन सा, अगर नेगेटिव आंसर है तो 360 का कोई मल्टीपल ऐड करना है. अगर पाई में फिगर्स दी हुई है तो यहाँ पे आपको पाई में ऐड करना पड़ सकता था. 3 पाई ऐड कर सकते हो, 6 पाई ऐड कर सकते हो, 4 पाई ऐड कर सकते हो, राइट. डिग्रीज में दिए हुए अकॉर्डिंगली आपने उस तरह से ऐड करना. अगर ये एंगल 360 से बहुत बड़ा दिया हुआ है जैसे 19 पाई बाय 3, तो आपने यहाँ पे 2 पाई का कोई भी मल्टीपल बनाने की कोशिश करें. सो इस एक्सरसाइज की अभी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. सो बिफोर दैट हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स करते हैं एंड सम फॉर्मूलाज व्हिच विल रिक्वायर. sin of minus x is equal to minus sin x. Sin of minus x is equal to minus sin x. इसका हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं. sin of minus 30 निकालना, right. So this will be same as minus sin 30. ये नेगेटिव साइन हम बाहर ले सकते हैं. इसकी वैल्यू हमें 1/2 पता, राइट. सो अब हम एंगल अगर नेगेटिव हो तब हम देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं. The second formula here is for cos. Cos of minus x is same as cos of x. In other words, cos absorbs the negative sign. I remember it this way. Cos जो है नेगेटिव साइन को absorb कर लेता है. Cos of minus x है तो फाइनल आंसर cos x है, right. So tan of minus x is minus x. तो cos ही है तीनों में से जो कि नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करता है. cos एब्जॉर्ब करता है तो ऑटोमेटिकली secant करेगा, cosecant नहीं करेगा, cot नहीं करेगा. So only cos absorbs the negative sign and accordingly secant absorbs the negative sign. Main there are about 20-25 identities which we have to learn. Class 10th में 3 ही होती थी, but now we have at least
20 or 25 of them which we need to remember. So I normally divide them in 4 categories. 4 categories हैं उन identities की. So let's learn the first category of identities. So category 1. Cos of x plus y. इसका हमें आंसर निकालना हो कि cos of x plus y क्या होगा. So this is cos x cos y minus sin x. इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड cos of 75 degrees, राइट. सो cos of 75 कैसे निकलेगा? cos of 45 plus 30. 75 को मैंने ब्रेक किया 45 plus 30. अब मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ. ये आइडेंटिटी है cos of x plus y. दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम केस है. टू एंगल्स आर गेटिंग एडेड. एक 45 एक 30 है. सो एज पर दिस फॉर्मूला क्या आंसर आएगा? cos x cos y यानी cos 45 into cos 30 minus sin x sin y यानी sin 45 into sin 30. cos 45 की हमें वैल्यू पता है, so 1/√2. cos 30 so √3/2. sin 45 is again 1/√2 and sin 30 is 1/2. So LCM में 2√2 ले सकते हैं. So you are left with √3 minus 1. नहीं, normally cos 75 की वैल्यूज ऐसे ही लिखी जाती है, so हम सिंपलीफाई इसको नहीं करते हैं. For competitive exams, you might be required to remember values of sin 75, cos 75, tan 75. तो ऐसे ही याद की जाती है, राइट. इसको हमें √3 की वैल्यू नहीं पुट करनी है कि 1.73 हम इसको पुट करके देखें. हाँ नहीं, रैशनलाइज भी नहीं. नॉर्मली इट इज लेफ्ट लाइक दिस, राइट. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? Yes, Ishita, Tisha, Yasmin. सब क्लियर है. Okay, Clear है, Vinayaka clear हो रहा है आपको सारा? Yes sir. Okay, the second identity here is cos of x minus y. कि अगर बीच में माइनस आ गया, अब आपको cos of 15 डिग्री फाइंड करना है, तो हम उसको लिख सकते हैं cos of 45 minus 30. अब बीच में एक नेगेटिव साइन आ गया, राइट. तो ये आइडेंटिटी क्या बनी, राइट. इस आइडेंटिटी को हम पहली आइडेंटिटी से डिड्यूस कर सकते हैं. कैसे? जहां जहां प्लस y था माइनस y करते जाएं. इस आइडेंटिटी में जहां भी प्लस y है उसकी जगह माइनस y लिखते जाएंगे. तो ये रहा cos x. cos of minus y, हमें पता है cos एब्जॉर्ब्स की नेगेटिव साइन, ये cos y ही रहेगा, राइट. sin x तो ऐसा ही रहेगा. sin of minus y, sin नहीं एब्जॉर्ब करता नेगेटिव साइन, तो एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो दिस माइनस विल बिकम प्लस. तो दिस इज so like this. So सेकेंड आइडेंटिटी ये है. अगर आप इसको याद रख लें बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रखें तो यू शुड बी एबल टू डिड्यूस इट फ्रॉम हियर. ये हम इमीडिएटली इसको ऐसे पुट करके वैल्यूज देख सकते हैं. The third identity in this category is sin of x plus y. So this is sin x cos y plus cos x sin y. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही हो सकता है. Again, if you have to find sin 75 degrees, right? So you can find this
or what I can do is I can take up one question from the exercise. Yeah, ये exercise का question है in fact. This is question 5th part 1. वहाँ पे sin 75 की ही value find करनी है. तो इस identity को use करके just try and find the value of sin 75. तो इसको आप लिखेंगे sin of 45 plus 30, that will be sin 75. One plus two, 3/2. So LCM लेंगे, so 2 root 2 is the LCM, and in the numerator you have root 3 plus 1. So that is the value of sin 75. ये sin 75 वगैरह हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, right? Sin 75 और cos 75 are the same. उसमें शायद नेगेटिव साइन था बीच में, देखते हैं आप नोट्स में बना इसको मैंने जो आप सॉल्व कर उसका है ना ये सारे देख कर लो सारे साथ साथ करते रहो. Okay, so after this the fourth identity, में sin of x minus y है, right? जैसे ऊपर चेंज था वैसे ही यहाँ पे है sin of x minus y. तो अगर आप ये याद रख लेंगे तो आप इससे इमीडिएटली डिड्यूस कर सकते हैं, जहां भी y दिख रहा है उसकी जगह माइनस y पुट करेंगे. cos of minus y will be same as cos y. sin of minus y will be minus sin y, which means आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है, so get a negative sign here. So then we have identity for tan and cot also in this category of identities. So tan of x plus y will be tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. So again exercise से question लेते हैं. You have to find the value of tan 15. So before that tan x minus y की identity भी लिखते हैं. Again replace y by minus y here, right? Tan of minus y is minus tan y. Tan negative sign absorb नहीं करता है, right? So accordingly ये हमारी identity change हो जाएगी. So this will be the identity. So now let's find tan of 15 degrees, which means we have to find tan of 45 degrees minus 30 degrees. So this is the sixth identity in this category.
-1/√3+1. हाँ, इसको एक बार रैशनलाइज कर लो। नॉर्मली tan 15 की वैल्यू रैशनलाइज करके लिखते हैं। -4 -2√3/4. 2 - √3 आना चाहिए। 2 minus. I said 4 -2√3/4. So after this, we will rationalize this. So this is 2 minus √3. So that is the value of tan 15. So after this, there is an identity for cot also, right? So cot की आइडेंटिटी वैसे तो कम यूज होती है। ये जो अभी तक हमने 6 आइडेंटिटीज लिखी इन्वॉल्विंग साइन, कॉस एंड टैन, ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की आइडेंटिटीज का यूसेज बहुत फ्रीक्वेंट है क्लास 12 में। सो इसमें अब 7th आइडेंटिटी कॉट है, वो इतना ज्यादा यूज नहीं होती है, बट कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली कॉट की आइडेंटिटी ही लगती है। So this is cot x cot y minus 1 divided by cot x plus cot y. जो माइनस साइन की आइडेंटिटी है, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, जस्ट इन केस कभी वो यूज करना हो तो आपने बस y को माइनस y से रिप्लेस करना, राइट? After this we have category 2. ये कैटेगरी 1 आइडेंटिटीज थी, अच्छे से आपने इनका रट्टा लगा लेना है आइडेंटिटीज का। By heart you should remember all of them. So after this category 2 of identities, उनमें क्या है, आइडेंटिटीज हैं sin 2x की, उसके बाद cos 2x, उसके बाद tan 2x। अब a plus b या x plus y नहीं है इनमें, 2 times the angle है, राइट? वैसे तो जो हमने आइडेंटिटी करी sin of x plus y, उसका कुछ यहाँ पे आंसर था, यहाँ y को मैं x पुट कर दूं तो ये sin 2x हो जाएगा। तो वही आइडेंटिटीज से मैं इन्फर कर सकता हूँ, बट ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं कि इनको आपको याद ही रखना होगा, राइट? सो sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. इसी का एक और वर्जन है, the answer is in terms of tan x. So these are the two formulas for sin x that we need to remember. कुछ क्वेश्चंस में तो यही यूज होगा, sin 2x is 2 sin x cos x, बट कईयों में tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, तो 2 tan x by 1 plus tan square x, so that is also that we need to remember. So then we have for cos 2x, so cos 2x can be written as cos square x minus sin square x. अब
इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बेसिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, उसको यूज करके हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। सो इसको फर्दर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। ये मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो उसके बाद मैं इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो इन सम क्वेश्चंस इट मे बी रिक्वायर्ड कि हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर ही लाना है, कॉस स्क्वायर एक्स लाना है, हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। So start with you can remember the answer as this cos square x minus sin square x। अगर cos square में सारे में कन्वर्ट करना है तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल आंसर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू sin square, तो cos square x को लिख सकते हैं 1 minus sin square x and your answer will be 1 minus 2 sin square x। तो ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, बट अब इतने सारे आंसर्स याद करना मुश्किल होगा। सो जस्ट रिमेंबर इट इन दिस फॉर्मेट, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x। अब आपको sin square हटाना है तो ऐसे आप हटा सकते हो, cos square हटाना है तो आप ऐसे, राइट। बट फर्दर दिस इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ tan 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x। And after this you have an identity for tan 2x। इसका डायरेक्ट आंसर याद करें तो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज tan 2x is sin 2x by cos 2x। इन दोनों आंसर्स को मैं डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा, सो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये डिनोमिनेटर्स दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। सो द आंसर यू विल गेट इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 minus tan square x। वेरी नाइस। हाँ, पहले 7 हो गई थी तकरीबन कॉर्ड वगैरह की मिला के, और अभी 3 और हो गई है। सो 10 आइडेंटिटीज वी हैव डन टिल नाउ। अभी कैटेगरी 2 कंप्लीट नहीं है, दिस विल बी कंप्लीट नेक्स्ट टाइम। इसमें sin 3x आ जाएगा। अभी sin 3x हो तो क्या करना है, cos 3x हो तो क्या करना है, और tan 3x हो तो क्या करना है। So this we will complete in the next class. So today we've done major 10 identities, right? So all these identities you need to learn by heart, okay? और इससे पहले जो हमने और कॉन्सेप्ट्स किए हैं उस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद exercise 3.2। we had done question 1, you can start with question 2।